وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ مختصراً میں نے نزار سے اپنی روداد بیان کر دی۔ کاش تو مجھے پہلے مل گئی ہوتی۔ نزار کے لہجے میں تعصب تھا۔ تو نے اپنے لشکر کی جو گنتی بتائی ہے وہ سیان یا اس کے زیر نگی کسی علاقے پر حملے کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ہاں، اگر تیری اور میری سپاہ یکجا ہو جائے تو شاید ہم سیان سے ٹکر لے سکیں، مگر اب تیرے بیان کردہ واقعات کے مطابق میری آبائی بستی پر رات ہی مہا پجاری نے حملہ کر دیا ہوگا اور وہ دھوکہ کھا گیا ہوگا۔ دیوتا اس کی مدد کرے۔ اے نزار، کیا تیرا خیال میں واہب کے مقابلے پر میرے لشکر کو شکست میں اب میں اپنا جملہ پورا نہ کر سکی اور میری آواز بجھی ہوئی تھی۔ ذہنی طور پر میں اپنے لشکر کی شکست قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ تو رنج نہ کر اے مابلا، نزار نے مجھے تسلی دی۔ دیوتاؤں کی مرضی کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ میرا ارادہ تریر کے ساتھ ادھر جانے کا تھا۔ اے نزار، میں بولی۔ نزار کو میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے سمن میں تحریر سے متعلق بھی بتا چکی تھی، مگر دانستہ گزشتہ رات کے واقعے کا ذکر نہیں کیا کہ میں سمین کو معاف کر چکی تھی۔ اگر نزار کو یہ معلوم ہو جاتا کہ سمین نے مجھ پر دست درازی کرنا چاہی تو پھر سمین کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، جو میں اب نہیں چاہتی تھی۔ اب میں تجھے ادھر جانے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا اے مابلا، نزار نے میری بات سن کر کہا۔ اب یہ معلوم کرنا تیرے لشکر پر کیا گزری میری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری بھی میری ہی ہے اے مابلا کہ مہا پجاری کو خبر کر دی جائے کہ تو اپنوں میں ہے، اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب تک مہا پجاری اور تیرے لشکر کی کوئی خبر نہ مل جائے تو یہیں قیام کر۔ میں نے سوچا کہ مجھے نزار کی درخواست قبول کر لینی چاہیے۔ تریر کے اسات اشر کی بستی پہنچی اور مجھے وہاں پجاری اور اپنے لشکر ہی کے بارے میں معلوم تو کرنا تھا، اور یہ ذمہ داری نزار نے سنبھال لی تھی، اور میرے بارے میں وہ مہا پجاری کو یہ اطلاع بھی پہنچا سکتا تھا کہ میں خیریت سے ہوں اور اپنے بہی خواہوں میں ہوں۔ یہی کب سب کچھ سوچ کر میں نے نزار کو مخاطب کیا۔ تو نے جو کچھ کہا ہے اے نزار مجھے منفرد ہے، مگر موجودہ حالات کے پیش نظر یہ بھی ضروری ہے کہ میرا یہاں قیام رات میں رہے۔ تو بتا کہ اس کی کیا صورت ہو۔ کچھ دیر غور و فکر کے بعد نزار نے ایک تجویز پیش کی جو میں نے قبول کر لی۔ اس طرح اس بستی میں میرا قیام راز رہ سکتا تھا۔ پھر اسی تجویز کے مطابق میں فوری طور پر مسند سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نزار اول اور میرے سوا کسی اور کو یہ خبر نہیں ہو سکی کہ اس کمرے میں کیا باتیں ہوئی۔ میں اس کمرے کے دروازے کا پردہ اٹھا کر باہر آئی تو سمین کو اپنا منتظر پایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، بڑی دیر کر دی تو نے آتون۔ اچھا، میں نے یوں حیرت کا اظہار کیا جیسے مجھے دیر ہو جانے کا احساس نہ ہوا ہو۔ ہاں اور کیا، وہ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ تریر بڑی بے چینی سے تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ سمین کے ساتھ میں حویلی سے نکل آئی اور وہ مجھے چھوڑنے کے لیے اب اپنے گھر تک آیا اور رخصت ہوتے وقت کہنے لگا، اے آتون، تو نے کہا تھا کہ آئندہ ادھر ضرور آئے گی، میں تیرا انتظار کروں گا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی اے سمین، مجھے نزار سے ملنے یہاں آنا تھا، سو میں مل چکی۔ پھر تو یہ اچھا نہیں ہوا کہ آتون کہ میں نے آج ہی نزار سے ملوا دیا۔ سمین کے لہجے میں اداسی تھی۔ اس نے شاید ابھی میرے حصول کی آرزو کو اپنے دل سے نہیں نکالا تھا۔ اب وہ مجھ پر احسان جتا کر میری توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اسے آئندہ اس بستی میں میری آمد کی متوقع سے خوشی حاصل ہو سکتی ہے تو میرا کیا جاتا ہے۔ کسی سے اس کی خواہشیں اور خواب نہیں چھیننے چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے آئندہ آنے کا وعدہ کر لیا اور اس کے چہرے پر بہار سی آ گئی۔ تو بہت اچھی اور مہربان ہے اے آتون، اس نے یہ کہتے ہی خلاف توقع میرا دایاں ہاتھ تھام لیا اور
फिर उस पर अपने होंठ रख दिए और उसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे समीन का सारा वजूद उसके होंठों में सिमट आया हो। फिर इससे पहले कि मैं समीन की इस हरकत पर अपने किसी रद्द अमल का आधार करती, वो तेजी से मुड़ा और लंबे लंबे ढग बढ़ता हुआ उसी रास्ते पर चला गया जो अव्वल की हवेली तक जाता था। मैंने सोचा कि आदमी किसी तरह ख्वाहिशों के खिलौनों से बहल जाता है। यही सोचती हुई मैं समीन के घर में दाखिल हुई। तरीर अंदर अपनी बहन नाताशी के कमरे में था। बच्चों ने जब मुझे देखकर मेरी आमद का शोर मचाया तो वह बाहर निकल आया। उसने भी मेरे देर से लौटने की शिकायत की। तूने बहुत देर कर दी ए अतुन, अब हमें सूरज गुरूब होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तारी का सबूत देना पड़ेगा। और जरा ही देर के बाद तरीर के साथ मैं घोड़े पर सवार उस बस्ती से निकल आई। रात को वहां रुक कर ही कल सुबह मैं अपनी बस्ती के लिए रवाना हो सकूंगा। तरीर ने मेरे साथ साथ अपना घोड़ा दौड़ाते हुए कहा, तेरी शब बसरी का इंतजाम वहां हो जाएगा। मैंने बात को टालने के लिए कह दिया, हालांकि अब इसका कोई इम्कान नहीं रहा था। हम दोनों का सफर करते हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक नकाब पोश घुड़सवारों के एक गिरोह ने हमें अपने घेरे में ले लिया। उन्होंने इतनी मोहलत भी नहीं दी कि तरीर अपने शाने से राइफल उतार सकता और फिर उनमें से एक ने तरीर के सीने पर अपनी राइफल की नाल रख दी। कौन लोग हो तुम, क्या चाहते हो? तरीर की एहतजाजी आवाज बुलंद हुई। उसी लम्हे एक और नकाब पोश ने अकब से आकर अपनी राइफल का दस्ता तरीर के सर के पिछले हिस्से पर मारा। हाथ बड़ा जचा चुला था। तरीर औंधे मुंह अपने घोड़े की पुश्त पर ढेर हो गया। एक नकाब पोश जो मेरे करीब ही मौजूद था, उसने मेरी तरफ एक स्याह निकाब और बड़ी सी एक चादर बढ़ा दी और मैंने नकाब अपने चेहरे पर लगा ली और फिर चादर में अपना सारा जिस्म छुपा लिया। अब मुझे बहसीयत आतून पहचानना मुश्किल था। तरीर को इसी हालत में वहीं छोड़ दिया गया और वापसी का सफर शुरू हुआ। बस्ती में हम उसी मर्तबा अकबी सिमत से दाखिल हुए। बस्ती में दाखिले के वक़्त सिर्फ एक नकाब पोश मेरी रहनुमाई के लिए साथ था और उसने अब अपने चेहरे से नकाब हटा दी और यूं मेरे आगे आगे चल रहा था जैसे उसका मुझसे कोई तल्लुक ना हो। बहसीयत आतून गोया अब मैं उस बस्ती से जा चुकी थी। तरीर होश में आने के बाद कुछ देर मुझे आस पास तलाश करता और फिर बस्ती में लौट कर अपने बहनोई समीन को मेरे अगवा की कहानी सुनाता और बस फिर तो उसे अपनी बस्ती के लिए रवाना हो ही जाना था। हवेली के अकबी रास्ते से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक मैं अंदर पहुंच गई। अपना घोड़ा हवेली के अकबी दरवाजे पर मैंने उस शख्स के हवाले कर दिया जिसने यहाँ तक मेरी रहनुमाई की थी। हवेली में दाखिल होते ही एक खादमा ने मुझे एक अंदरूनी कमरे में पहुंचा दिया। वहां नज़ार मेरा मुंतजर था। ऐ मामला, कोई दुश्वारी या परेशानी तो नहीं हुई यहाँ तक आते हुए? नज़ार ने खादमा के जाते ही पूछा। नहीं, मैंने चादर उतार कर एक तरफ रखते हुए कहा। हाँ, इस बेचारे तरीर पर मुझे जरूर रहम आया जिसे जख्मी और बेहोशी करके बस्ती से बाहर छोड़ दिया गया। मजबूरी थी, वरना ऐसा ना किया जाता। मैं समझती हूँ। ये बता, क्या अशर की बस्ती की तरफ तेरे कासद रवाना हो गए? मैंने दरियाफ्त किया। हाँ ए मामला, 2 कासदों को रवाना किया जा चुका। इसके अलावा तेरी हदायत पर उन सब मुहावजों को भी तब्दील कर दिया गया जिन्होंने आतून की हैसियत से तुझे इस हवेली में आते देखा। उन्हीं में समीन भी है। अब उन मुहावजों में से किसी को हवेली में कदम रखने की इजाजत नहीं। नसार ने बताया, फिर कहने लगा, अव्वल तुझे हवेली में मौजूद खिवातीन से मिलवा देगा और वो भी अगर तेरी मर्जी हुई, वरना किसी को भी सवाए चंद खादमाओं के हवेली के शीशे में आने की इजाजत नहीं होगी। क्या तू भी ए नज़ार इन्हीं में शामिल है जो इधर नहीं आ सकते? मैं मुस्कुराकर बोली। अगर तेरी इजाजत ना हुई तो मैं भी इस तरफ नहीं आऊंगा। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। कब तक तेरे कासदों के लौटने की उम्मीद है? उन्हें तेज रफ्तारी से जाने और वापस आने का हुक्म दिया गया है। कल सुबह तक उन्हें लौट कर आना चाहिए। तो उस बस्ती के अलावा और कहाँ रहता है? ये तो ए मामला राज की बात है, तुझे इतनी आसानी से कैसे बता दूं? क्या खबर तू सियान से इनाम लेने की खातर मुझे गिरफ्तार करा दे या मेरा सर काट कर उसकी खिदमत में जाकर पेश कर दे, है ना? ये कहकर वो हंस दिया और फिर संजीदा होकर बताया, इस बस्ती के अलावा एक और छोटी सी पहाड़ी बस्ती है और उसे भी मैंने ही बसाया है। वहां भी मेरा एक नायब आज़म मुकर्रर है जो बहुत होशियार और अक्लमंद है और उसके नाम के मैंने भी होशियार और अक्लमंद लिखे हैं। तू यकीनन उसके मिलकर खुश होगी। सो मैं कभी कहाँ और कभी यहाँ रहता हूँ।
मगर शोहरत यही दी गई है कि इन दोनों ही बस्तियों में अमूमन नहीं होता और अपना ज्यादातर वक्त गारों में रहकर गुजारता हूँ। मगर ये किस तरह मुमकिन है? क्या तुझे तेरी दोनों बस्तियों के बासी पहचानते हैं? मैंने सवाल किया। पहचानते हैं क्यों नहीं, मगर बज़ाहिर वो मुझे इन बस्तियों में आने के बाद जाता हुआ भी देखते हैं, जिस तरह आज शाम को देखेंगे। निज़ार ने वजाहत की। आज शाम बज़ाहिर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा और बस्ती वाले मुझे मेरे हिफाजती दस्ते के साथ यहाँ से जाते देखेंगे और फिर मैं रात को किसी वक्त दोबारा इसी हवेली में लौट आऊंगा। और मैंने तुझे इसीलिए तो अपना आजमूदा नुस्खा फौरन बता दिया था। अब वो आहिस्ता से हंसा। उसे तो मेरी रोपोशी का जमाना कह सकती हो। मैं फिर हवेली से बाहर नहीं निकलता और हवेली में मेरी मौजूदगी का इल्म भी अव्वल और मेरे चंद खास मुहावजों के सिवा किसी और को नहीं होता। अब समझ गई तू? हाँ समझ गई। तू भी मुझे अपने नायब आज़म से कम होशियार और अक्लमंद नहीं लगता, मैं हंस कर बोली। उसी होशियारी और अक्लमंदी की वजह से देवता मुझ पर मेहरबान है, वरना तो मुझ पर कई बार कातलाना हमले हो चुके हैं। मेरी रूपोशी की एक बड़ी वजह ये कातलाना हमले भी हैं। गरीब लोग इनाम के लालच में आ जाते हैं, इन हजार ने बताया। मालूम नहीं क्यों गैर इरादी तौर पर एक सवाल मेरी जुबान पर आ गया। ये बता ए नज़ार कि तेरी कितनी बीवियां हैं? एक भी नहीं, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? मुझे इसके जवाब पर हैरत हुई। क्या तुझे और दूसरे सरदारों की तरह बीवियां रखना पसंद नहीं? उसकी एक वजह है मामला। ये कहते हुए उसने गहरा सांस लिया। क्या वजह है? जब वो कुछ देर चुप ही रहा तो मैंने पूछा। मैंने अहद किया है ए मामला कि जब तक जालिम सियान से अपने बाबा के कत्ल का बदला नहीं ले लूंगा और उसकी कटी हुई गर्दन पर भी दहकता हुआ तवा नहीं रख दूंगा, मुझे पर जिंदगी का ऐशा हराम है। ये कहते हुए नज़ार की आवाज जोश से भर गई। और तुझे यकीनन ये सुनकर खुशी होगी ए नज़ार कि ऐसा ही मंजर देखने की आरज़ू मुझे भी है। मैंने भी तो खुद अपनी आंखों से अपने बाबा पर ये जुल्म होते देखा है। ए नज़ार यकीन कर कि आज तक वो हौलनाक मंजर मेरी आंखों में महफूज है। और मेरी आवाज भर्राने लगी और फिर मैंने भी जोश में आकर नसार के रूबरू अहद किया। गवाह रहना ए नज़ार कि जब तक मेरी आंखें सियान का सर कट कर गिरते हुए नहीं देख लेंगी, अपने शोहर की शक्ल नहीं देखेंगी। देवता तुझे तेरे किए हुए अहद पर कायम रहने का हौसला अता करे। ए मामला, नज़ार ने बड़े खलूस से मुझे दुआ दी। कुछ देर को कमरे में बोझल सा सकूत तारी हो गया और मैं भी अपनी सोच में गुम थी और नज़ार भी। और मेरे ज़हन में एक और सवाल उभरा और ज़बान तक आ गया। ज़ियान को भी यकीनन ये खबर होगी कि तू ही इन दोनों बस्तियों का असल सरदार है। अव्वल और आज़म तेरे ही नायब हैं। फिर क्या वजह है कि वो तेरी बस्तियों पर हमला नहीं करता? और मेरी नजरें उसके वजीह चेहरे पर मरकूज थी। वो खुद को गाज़िब, जालिम और जारहीत पसंद कहलवाना नहीं चाहता। सुन ए मामला, कोई भी छोटा या बड़ा कबीला इस बात को पसंद नहीं करता कि किसी कबीले की बस्ती पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया जाए या बिला सबब कोई कबीला किसी दूसरे कबीले पर टूट पड़े। हुआ ये कि सियान ने बरसरे इक़्तिदार आते ही वादी सबज के इर्द गिर्द जो छोटी छोटी बस्तियां हैं उन पर कब्जा कर लिया और फिर वहां अपने नायब मुकर्रर कर दिए। उससे पहाड़ी बस्तियों में आबाद कबाइल सियान के खिलाफ होने लगी और फिर इससे पहले कि ये मुखालफत बढ़ जाती, सियान ने इन कबीलों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और खुद को अमन पसंद जाहिर करने लगा। सियान को यह खतरा पैदा हो गया कि तमाम कबाइल मुत्तहिद होकर उसके खिलाफ ना उठ खड़े हों। अब उसने गुज़श्ता कई साल से अहदनामा अमन का ढोंग रचाकर छोटे कबाइल को अपना हमनवा बनाना शुरू कर दिया। सो ए बाबला, मेरी बस्तियों पर बराह रास्त हमला करने ना करने का यही सबब है। नज़ार ने तफसील के साथ इन बस्तियों की सियाहत और हालात से आगाह किया। मगर मैंने एक बात और सुनी थी कि तूने 2 साल पहले उसके नायब वहां पर हमला किया था, तो फिर तेरे कबाइल तेरी तरफ से बरगश्ता क्यों नहीं हुए? इसीलिए ए मामला के तमाम ही कबीले इस बस्ती पर मेरा हक तस्लीम करते हैं। और मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि मुतअद्दिद बार अपने हक की खातिर जंग कर चुका हूँ। जब तमाम कबीले तेरी इस आबाई बस्ती पर तेरे हक को तस्लीम करते हैं तो फिर तेरा साथ क्यों नहीं देते? अक्सर तो ज़ियान के साथ अहदनामा अमन की वजह से मजबूर हैं और जो दूसरे हैं वो अपनी सलामती की खातिर पराई आग में कूदना नहीं चाहते। इन्हीं मसाइल पर नज़ार से गुफ्तगू करते हुए दोपहर के खाने का वक्त हो गया। अव्वल ने खुद आकर खाने के लिए कहा। ए अव्वल, खादमाई को हदायत कर दे कि बाबला के ज़ैर इस्तेमाल बर्तन अलग रहेंगे। नज़ार ने हदायत दी।
तुझे भी अब तक ये बात याद है ए नज़ार? मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ याद है, पहले तू मेरे बाबा की मेहमान थी और अब बरसों बाद मेरी मेहमान है, मगर पहले ही की तरह इस मर्तबा भी मैं किसी शब्द तू खामोशी के साथ यहाँ से भी तो गायब नहीं हो जाएगी। ये समझ ले ए माबला, एक बार तू अपना एतमाद खो चुकी है। नज़ार ये कहकर हंसा। इस मर्तबा तुझे बताकर जाऊंगी। मैं भी हंसने लगी और फिर हम तीनों ने खाना खाया। मेरे बर्तन अलग ही थे। खाना खाकर वो दोनों चले गए और मैं आराम करने बिस्तर पर लेट हो गई। अभी मेरी थकन पूरी तरह उतरी ना थी कि गुज़श्ता रात भी समीन के घर में पेश आने वाले वाक़े की वजह से रात का बड़ा हिस्सा बेइरामी में ही गुजरा था और यही सबब था कि जल्द ही मेरे ज़हन पर गनूदगी छाने लगी और अभी मेरी आंखें बंद ही हुई थी कि मुझे आशनापुर इसरार सरगोशियां सुनाई देने लगी। सरगोशियों में मुझे एक खतरे से आगाह किया गया, मगर वो खतरा मेरे लिए नहीं था। सरगोशियों में मुझसे कहा जा रहा था कि सुन ए मामला, इसी बस्ती के घर में नज़ार के कत्ल की साजिश हो रही है। तू इस साजिश को नाकाम बना सकती है। आज शाम जब नज़ार बज़ाहिर इस बस्ती से रुखसत होने के लिए अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ हवेली से निकलेगा, तू सियान का एक परवरदा सफाक शख्स इंतहाई मोहलक और खतरनाक जहर में बुझा हुआ तीर नज़ार के जिस्म में प्यूसस कर देगा। उससे नज़ार मौका पर ही हलाक हो जाएगा, या यूं समझ लो कि हलाक हो सकता है। ए मामला, तू अपने मोहसिन नज़ार को इस मुमकिना कातराना हमले से बचा ले कि ऐसा तेरे इख्तियार में है, मगर किस तरह? मैं जैसे ख्वाब के आलम में बड़बड़ाई। इस तरह के तू इस कातिल का चेहरा देख ले और अपनी आंखों से बस्ती के इस घर को भी देख ले जहां वो कातिल छुपा हुआ है। वो कातिल गुज़श्ता रोज ही इस बस्ती में वादी सबस से आया है। सयान के मुखबरों ने उसे खबर दी कि जल्द ही नज़ार वहां पहुंचेगा, मगर वो दिन के उजाले की बजाय रात को आया और कातिल को उस पर कातराना हमले का मौका नहीं मिल सका। यहाँ वो कातिल उसी बस्ती के एक शख्स के घर में आकर ठहरा है और ये शख्स सयान का मुखबर है। तो उसका चेहरा भी देख ले, पहचान ले। और सरगोशियां बंद हो गई और फिर मैंने जैसे एक सच्चा ख्वाब देखा। मैं खुद को हवेली के दरवाजे से निकलते देख रही थी और कुछ दूर सीधा चलने के बाद मैं सीधे हाथ को मुड़ गई और फिर मैंने एक छोटा सा मैदान अबूर किया। वो मैदान अबूर करके मैं बाएं जानब की एक गली में दाखिल हुई और दाएं जानब से बने हुए एक कच्चे घर में पहुंच गई। उस घर की एक कोठरी में तंदुरुस्त और मजबूत जिस्म वाला शख्स लेटा हुआ था। उसका चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। यही वादी सबज़ का वो जलाद था जिसने मेरे बाबा की गर्दन मारी थी और गुज़श्ता बरसों के दौरान में उसके अंदर सिर्फ इतनी तब्दीली ज़रूर हुई कि उसके सर पर नज़र आने वाले बड़े बड़े बाल बड़ी हद तक सफ़ेद हो गए थे। उसकी आंखें बरसों पहले ही की तरह अब भी सुर्ख और डरावनी थीं। और फिर उसी कोठरी में मुझे एक और दाढ़ी वाला दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। यही है सयान का मुखबर। मुझे एक बार फिर पुर इसरार सरगोशी सुनाई दी। जिस बिस्तर पर कातिल इस वक्त दराज है, उसी के नीचे जहर में बुझा हुआ वो तीर रखा है जिससे नज़ार पर कातराना हमला किया जाने वाला है। ए बाबला, अब वापस चल और एक बार फिर उस घर तक पहुंचने का रास्ता देख ले। और फिर जिस तरह हुआ मैं उस घर तक पहुंची, उसी तरह वापस हुई। मुझे उस घर का रास्ता याद होगा। चंद ही लम्हों के बाद मेरी आंख खुल गई और मैंने महसूस किया कि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपने हवास पर काबू पाने में कुछ वक्त लगा। चलते हुए अव्वल मुझे बता गया था कि उस कमरे के बाहर एक खादमा मौजूद है और जब भी ज़रूरत हो मैं उसे तलब कर सकती हूँ। मैं उठी और कमरे के दरवाजे से निकलकर खादमा को करीब आने का इशारा किया। वो दरवाजे से कुछ दूर राहदारी में मुस्तैद चौकना खड़ी थी और मेरे इशारे पर वो लपक कर आ गई। जा और नसार को इसी वक्त मेरे पास बुला कर ला, मैंने खादमा को हुक्म दिया। तो वो तो इस वक्त सो रहा है ए मोहतरम खातून, खादमा बोली। शायद उसे पर्दा पोशी की खातर मेरे नाम से ना आशना रखा गया था। और अव्वल मैंने सवाल किया, वो भी अपनी खलवत गाह में जा चुका है। जगा दे, इन दोनों को जगाकर जगा दे और उनसे कह दे कि मैंने इसी वक्त उन्हें बुलाया है। मेरी आवाज़ पुरजोश थी। बेहतर है ए मुअज़्ज़ज़ खातून, खादमा ने अदब से सर झुकाया और फिर कुछ ना समझते हुए भी तकरीबन दौड़ती हुई वहां से चली गई।
नज़ार और अव्वल को मेरे पास पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी और मैं उन दोनों को हकीकत हाल से मैंने आगाह कर दिया, मगर अपनी मालूमात का जरिया नहीं बताया और वो दोनों मेरी बात सुनकर कुछ देर को गंग से होकर रह गए। मगर ए मामला, इतनी बड़ी बस्ती में यह किस तरह मालूम होगा कि वो घर कौन सा है जिसमें कातल छुपा हुआ है? उस कातल और उसे पनाह देने वाले सियान के मुखबर को कैसे पहचाना जा सकता है? आखिरकार नज़ार की आवाज़ ने सकूत तोड़ा। वो कातल वादी सबज से यहाँ आया है और मैं उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। ए नज़ार, ये वादी सबज का वही जलाद है जिसने सियान के हुक्म पर मेरी बाबा की गर्दन काटी थी। मैं उस कातल और सियान के मुखबर की निशानदही करूंगी। तुझे मैं इस घर तक ले जाऊंगी जहाँ वो कातल छुपा हुआ है, मगर इस तरह ए मामला तू छुपी ना रह सकेगी और ये अच्छा नहीं होगा। नज़ार बोला, तुझे किसी भी कीमत पर हवेली से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरी जान तेरी जान से ज्यादा तो नहीं ए नज़ार, मैंने पुरजोश आवाज में कहा। मुझे पहले से अंदाजा था कि नज़ार पर्दा पोशी बरकरार रखने के लिए मेरा हवेली से बाहर कदम रखना मंजूर नहीं करेगा। मैं इसीलिए पहले ही इस मसले का हल सोच चुकी थी और वही हल मैंने नज़ार को बता दिया। हाँ, ये मुमकिन है। नज़ार ने रजामंदी जाहिर कर दी। अव्वल ने फौरी तौर पर जरूरी बंदोबस्त कर दिया और फिर जब कुछ ही देर के बाद मैं नज़ार और उसके मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ हवेली से बाहर निकली तो शायद मुझे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मैं कोई लड़की हूँ। मेरे जिस्म पर ढीला डाला लिबास था और सर के बाल पगड़ी में छुपे हुए थे। नज़ार के मुहाफ़िज़ दस्ते ही का कोई नौउम्र नौजवान मुहाफ़िज़ मालूम हो रही थी और जल्द ही मैंने उन लोगों को उस कच्चे घर तक पहुंच गई जिसमें खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी। वादी सबज के जलाद और उसे पनाह देने वाले सियान के मुखबर चूहों की तरह घेर कर पकड़ लिया गया और मैंने वहां से वो जहर में बुझा हुआ तीर भी बरामद कर लिया जो बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। उन दोनों को हिरासत में लेकर हम हवेली लौट आए और फिर मेरी एमा पर उसी शाम बस्ती के बाहर मैदान में बस्ती वालों को जमा किया गया और मैं बदस्तूर मर्दाना लिबास में नज़ार के मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल थी। सारी बस्ती में पहले ही ये ऐलान किया जा चुका कि सरदार निज़ार पर कातलाना हमला करने की गर्ज से आने वाले एक शख्स को सज़ा दी जाएगी। लोगों के सामने सज़ा देने का मकसद दूसरों को इबरत दिलाना था, मगर उसका एक मकसद और भी था कि जिससे मेरे अलावा नसार और अव्वल ही वाकिफ थे। इस तरह शायद मैं अपने सीने में भड़कते हुए इंतकाम के शोलों को खून के छींटों से वक्ती तौर पर कुछ सर्द करना चाहती थी। नज़ार ने जो तख्त पर बैठा हुआ था उस शख्स की फर्द जुर्म बयान की जो जंजीरों में जकड़ा हुआ सर झुकाए सामने खड़ा था। मैदानों के बीचों बीच चूल्हे पर लोहे का तवा दहक कर सुर्ख हो चुका था। उसी बस्ती के लोगों के लिए वो तमाशा बिल्कुल नया था। चूल्हे के पास चिमटा लिए वो दो मुहाफ़िज़ मौजूद थे जिन्हें पहले ही नज़ार के जरिए ज़रूरी हदायत दे चुकी थी कि उन्हें कब क्या करना है। फिर उस जलाद को पछाड़ कर उसके सर के बाल काट दिए गए और गद्दी साफ कर दी गई। उसके बाद गर्दन के पिछले हिस्से पर सफ़ेद निशान लगा दिया गया। शायद वो शख्स समझ चुका था कि उसके साथ क्या हौलनाक वाक़या पेश आने वाला है। आखिरी रस्म अदा की जाए। नसार की आवाज़ बुलंद हुई। मुहाफ़िज़ दस्ते के दो सिपाहियों के साथ मैं आगे बढ़ी। दोनों सिपाही मुजरम को बाजुओं से पकड़कर मैदान के दरमियान उस जगह ले गए जहां चूल्हे पर लोहे का तवा रखा था और मुजरम की पुश्त चूल्हे ही की जानब रखी गई। मैं उसके पीछे पहुंच गई और मेरे हाथ में तेजधार और मोटे दिल वाला बड़ा बर्छा था और मेरी नज़र उस तख्त की तरफ थी जिस पर नज़ार बैठा था। अचानक मैंने नसार के हाथ को फिजा में बुलंद होते हुए देखा और उसी के साथ मेरा बर्छे वाला हाथ तेजी से घूमा और फिर बर्छा पूरी कुव्वत से उस जराद की गर्दन के पिछले हिस्से पर पड़ा जो ना जाने इसी तरह खुद कितने सर कलम कर चुका था। उसका सर कट कर जमीन पर गिरा और उछलने लगा। ऐन उसी लम्हे उसके कटी हुई गर्दन पर दहकता हुआ लोहे का तवा रख दिया गया। कटी हुई गर्दन से बुलंद होने वाला खून का फवारा रुक गया। खून का अखराज रुक जाने के सबब मकतूल का जिस्म रक्स के अंदाज में हरकत करने लगा। उसके दोनों हाथ उठे हुए थे और जिस्म थरक रहा था। वो रक्से बिस्मिल देखकर मेरा जी चाहा कि जोर जोर से कहके लगाने लगूं और मेरे अंदर जो दरिंदा छुपा बैठा था उसे ये खूनी तमाशा देखकर बहुत तस्कीन मिल रही थी। शायद हर आदमी के अंदर एक ऐसा ही दरिंदा छुपा होता है जो अपनी दरिंदगी का इज़हार करने के लिए मौके की तलाश में रहता है। मुझे एतराफ़ है कि वो मंजर देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून हुआ। शायद उसकी असल वजह यह थी कि आज मेरे हाथों उस शख्स का कत्ल हुआ जिसने सयान के हुक्म पर मेरे बाबा का सर कलम किया था।
उधर उस शख्स का सरबीदा जिस्म ढेर हुआ और उधर दूसरा तमाशा शुरू हो गया। अब मैं एक घोड़े में सवार थी और मेरे हाथ में लंबा सा नेजा था। उसी तमाशे में मेरे साथ नज़ार का मुहाफ़िज़ दस्ता भी शरीक था और मैंने अपने घोड़ों को तेजी से भगाते हुए उस शख्स का कटा हुआ सर अपने नेज़े में परो लिया और फिर उसे को मुझसे छीनने के लिए दूसरे मुहाफ़िज़ दौड़े और कुछ मुहाफ़िज़ों ने यही खेल उस शख्स के जिस्म के साथ शुरू कर दिया और जरा ही देर में उस शख्स के जिस्म को नेज़ों से छलनी कर दिया गया और फिर तलवारों से जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके यही खेल खेला जाने लगा और फिर ज़ियान के मुखबर को लाया गया और उसका भी यही हुशर हुआ, मगर मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। मैं तो यूं वक़्त जैसे कहीं और ही थी और मैं चश्मे तसव्वुर से उस मुखबर की जगह खुद सयान को देख रही थी। उस रात मुझे सुबह होने का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। सुबह उन कासदों को लौट कर आना था जिन्हें नसार ने अपनी आबाई बस्ती की तरफ भेजा था और फिर उस रात की सुबह हो गई, मगर ये सुबह मेरे लिए बहुत हौलनाक साबित हुई। कासद जो रूह फर्दा खबर लाए उसे सुनकर जैसे मेरा सांस रुक गया। आखिरकार वही हुआ था जिसका अंदेजा नज़ार ने जाहिर किया। कासदों की फराहम करदा इतलात के मुताबिक इब्तिदा में महापुजारी और हारस का पल्ला भारी रहा और ऐसा होना करीने कियास भी था। अमूमन इब्तिदा में हमला आवर फौज ही को बर्तरी हासिल होती है। सयान के नायब वाहब को संभलने में देर लगी, इसलिए भी कि हमला गैर मुतवक्का और कतई अचानक था और यही वजह थी कि वाहब को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। उस पर मेरे लश्कर का दबाव लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। करीब था कि वह पिस्पा हो जाता कि अकब से मेरे लश्कर पर जबरदस्त हमला हुआ और मेरा लश्कर पिस्पा होने वालों और नए हमले आवरों के दरमियान आ गया और वाहब की पिस्पाई हुई सपा की कदम फिर जम गए और कुछ ही देर में मैदान जंग का नक्शा बदल गया। मेरा लश्कर जिसका पल्ला पहले से भारी था, दुश्मन को कमक मिल जाने के बाद सख्त मुश्किल में फंस गया। अब वो दुश्मन के लश्कर का हम पल्ला नहीं रहा। बर्तरी तो दूर की बात थी, नतीजा ज़ाहिर था और मेरे लश्कर के पैर उखड़ गए। उसे दुश्मन के मुकाबले से राह फरार इख्तियार करना पड़ी। उस कोशिश में लश्कर के खासे सिपाही मारे गए। आहरस शदीद जख्मी होकर अपने घोड़े से गिर पड़ा और उससे पहले कि वह दुश्मन के सिपाहियों के हाथों मारा जाता या पकड़ा जाता, महान पुजर ने जान पर खेल कर उस दुश्मन के नरगे से उसे निकाल लिया। उस आखिरी मार्के में खुद महापुजारी भी जख्मी हो गया और मेरे लश्कर के बचे खुचे सिपाही करीबी पहाड़ियों में रूपोश हो गए और फतेहमंद दुश्मन उन्हें ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रहा था। उस होलनाक खबरों ने मेरे होश कम कर दिए थे। उसी के साथ मुझे नसार की दूर अंदेशी का भी अंदाजा हो गया। उसने मुझे तरीर के साथ उधर जाने से रोक दिया। अगर मैं वहां चली गई होती तो शायद वापस ना आती। मुझे या तो कत्ल कर दिया जाता या फिर गिरफ्तार हो जाती। नसार इस वक्त मेरे ही पास मौजूद था। उसी ने आकर मुझे कास्तों की फराहम करदा इत्तला से आगाह किया और मेरे चेहरे से मेरी दिल्ली कफियत का अंदाजा लगा लेना यकीनन उसके लिए मुश्किल नहीं रहा हो। फिर कुछ देर बाद उसने मुझे मुखातब किया, ऐ मामला जो कुछ भी हुआ उस पर यकीनन तुझे मलाल करना चाहिए, मगर इस कदर भी नहीं कि आइंदा के लिए तेरे हौसला पस्त हो जाए। यकीन कर के नज़ार तेरे साथ है और वो सुबान पर ज़र्ब लगाने में तुझसे पीछे नहीं रहेगा। तेरा लश्कर जिस तरह बर्बाद हुआ उस पर मुझे भी रंज है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ तेरे लोगों की बुज़दिली नहीं बल्कि दुश्मन की जंगी हिकमत अमली है। और तेरी मेरी मुलाकात अगर पहले हो जाती तो शायद आज हम अपनी फतह का जश्न मना रहे होते। हम दुश्मन की चाल उसी पर उलट देते। जिस तरह दुश्मन ने तेरे लश्कर को घेर कर मारा उसी तरह हम उसे शिकार करते। मैं जवाब में कुछ न बोली। मैं अब नज़ार की इस बस्ती में बेहफाजत और ऐशो आराम से रहने पर जिल्लत महसूस कर रही थी। तू कुछ न बोल, ऐ माबला, खामोश ना रह, यूं तेरे दिल का गुबार नहीं निकलेगा। नज़ार मेरे खामोश रहने पर दोबारा बोला। उसकी बात सुनकर मैंने गहरा सांस लिया और फिर कहा, मैं क्या कहूँ ऐ नज़ार, कि अब कहने को क्या रह गया है, मगर सिर्फ इस कदर कि अब मेरा मजीद इस बस्ती में रुकना बहादुरी नहीं बुज़दिली है और मेरे लोग अपनी जानें बचाने के लिए भटकते फिर रहे हैं और मैं यहाँ बेगैरतों की तरह छुपी बैठी हूँ। बता ऐ नज़ार, क्या मुझे ऐसा ज़ेब करना ज़ेब न देता है? क्या मैं इसीलिए इन लोगों को अपने साथ लाई थी कि उन्हें यहाँ लाकर दुश्मन के हाथों कटवा दूँ और खुद आराम से रहूँ? देख है मामला, ऐसे मामलात में अकल को दिल पर तरजीह देनी पड़ती है। तेरे साथ जो कुछ पेश आया है उसमें तेरा नहीं हालात का दखल है। नज़ार मुझे समझाने लगा, तू खुद यहाँ नहीं आई, तेरी मर्जी को भी इसमें कोई दखल नहीं था, ये देवताओं की मर्जी थी। जो भी हुआ ऐ नज़ार, मगर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती।
मेरा लहजा फैसला कुन था। फिर तू कहाँ जाना चाहती है ए मावला? वहाँ जहाँ मेरे अपने लोग हैं। मैंने रो में ये बात कह दी और सोचा नहीं कि इन अल्फाज का फिर नज़ार पर क्या रद्द अमल होगा। तो खुला ये ए मामला कि तूने हमें अपना नहीं समझा। ये कहते हुए नज़ार की आवाज़ में दुख था और मैं चौंक कर बोली, नहीं ए नज़ार, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मुझे तो उन बदनसीबों पर मलाल है जो सिर्फ मेरी वजह से दर बदर हो गए। मैं उनके पास पहुंचकर उनके दुखों में हिस्सेदार बनना चाहती हूँ। ए मामला, अगर तेरा यही फैसला है तो फिर नसार भी तेरे साथ चलेगा। उसने कहा, लेकिन तू मेरी खातर अपनी जिंदगी को क्यों खतरे में डालना चाहता है? मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही ए मामला, ये जिंदगी तो तेरी अता है और तूने ही मुझे बख्शी है। दर्दाना वादी सबद से आने वाला कातिल मुझे कत्ल कर चुका होता। तुझे शायद ये नहीं मालूम ए नज़ार कि तेरी जिंदगी देवताओं ने बचाई है, मैंने नहीं। लेकिन मैं तो इसे तेरी ही दीन समझता हूँ और मुझ पर मेरी जिंदगी तेरा कर्ज है। जब भी तुझे इसकी जरूरत पड़े ये कर्ज मैं अदा कर दूंगा। ए मामला, नज़ार की आवाज में खलूस और सच्चाई थी। मुझे अपने साथ चलने से ना रोक। अगर तू खुद इधर जाने का फैसला ना कर लेती तो मैं भी तेरे लोगों के लिए कुछ और ही सोचा होता। अगर तू कहे तो बयान कर दूं। मुमकिन है कि तू इस तरह अपना फैसला बदल दे। मेरा ख्याल है कि तू अपनी जिंदगी को खतरे में डाले बगैर इस तरह अपना मकसद हासिल कर सकेगी। इसके बावजूद भी अगर तूने अपना फैसला तब्दील ना किया तो मैं जिद नहीं करूंगा। कह दे ए नज़ार, तूने मेरे लोगों के लिए क्या सोचा है? और मैंने उसको दिल की बात कहने की इजाजत दे दी। मैं इस तरफ तेरे लोगों को तलाश में एक फौजी दस्ता भेजना चाहता था कि यह फौजी दस्ता तेरे दुश्मन के बाद जाने वाले सिपाहियों को लेकर यहाँ आ जाता और फिर हम अज़सर नौ जंग की तैयारियां करते। नसार ने अपनी तजवीज़ बयान कर दी और यूं भटकने से भी बच जाते, दुश्मन के मतवक्का हमलों से भी महफूज हो जाते और तेरे पास भी पहुंच जाते और आइंदा के लिए हमारी अफरादी जंगी कुव्वत में अजाफे का सबब भी बनते। हर चंद के नसार की तजवीज़ बहुत मुनासिब थी। इस तरह मुझे खुद को खतरे में डालने की जरूरत भी नहीं थी, मगर इस वक्त वाकई मैं अकल पर दिल को तरजीह दे रही थी। आहरस मेरी खातर शदीद जख्मी हो गया था और मेरे दिल को मुस्तरब करने के लिए सिर्फ ये खबर भी बहुत काफी थी। आहरस महज मेरे ही लिए सारी सहूबतें बर्दाश्त कर रहा था। मैं उसके एसार, उसकी मोहब्बत को किस तरह नजरअंदाज कर देती। मुझे खुद हर हाल में इस तक पहुंच जाना चाहिए था। फिर महापुजारी था जिसके मुझ पर अनगिनत एहसानात थे। बचपन से लेकर अब तक उसने मुतअद्दिद बार मेरी जिंदगी बचाई। उसे मसाइबों में गिरफ्तार छोड़कर मेरा इस बस्ती में क़याम किए रहना एहसान फरामोशी के ज़मन में आता है। फिर वो मेरे जानसार परस्तार थे जो मुझे आतून देवी कहते हैं और मेरी खातर इन वीरानों में भटक रहे हैं। क्या उनकी पुरस्तिश, उनकी वफाओं का यही सिला है कि मैं उन्हें बेसहारा छोड़ दूं? नहीं, सोचते सोचते बेइख्तियार में बोल उठी। मेरा ये इनकार गोया नसार की तजवीज़ से इख्तलाफ था। मुझे अंदाजा था ए मामला कि तू मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करेगी। नज़ार मेरा इनकार सुनकर बोला, ठीक है ए नज़ार, अगर तू मेरे ही साथ चलने पर बदिद है तो फिर देर ना कर और यहाँ से रवानगी की तैयारी कर। नज़ार मेरी बात से उठकर चला गया और मुझे फिर अंदेशों और वसवसों ने घेर लिया। अपने दुश्मन को गलत समझकर यकीनन मैंने गलती की थी। अब मैं सोच रही थी कि मैंने जल्दबाजी की है। अगर मैं तरयाल में 2-1 रोज मजीद रोककर समीर और उसके लश्कर को भी अपने साथ ले लेती तो बेहतर होता और यूं वो अय्यार बूढ़ा मेरे लिए बहुत सूदमंद होता। यकीनन उसने मुतअद्दिद जंगें लड़ी थी, वो तजर्बेकार था। हम में से किसी को भी जंग का तजर्बा नहीं था। महापुजारी, अहरस और खुद मैं तीनों ही इस मामले में ना तजर्बेकार थे। नसार को जंग का वसी तजर्बा था तो उससे अब मुलाकात हुई थी जब बाजी उलट चुकी। वो अगर मुझे पहले मिल गया होता तो शायद ये सूरत हाल ना होती। उस बस्ती से आशर की बस्ती के लिए रवाना होने में मुझे और नसार को ज़्यादा देर नहीं लगी। नज़ार का ये मशवरा मैंने कबूल कर लिया कि मेरे जिस्म पर मर्दाना लिबास ही होना चाहिए। एहतियात के पेश नज़र ये मशवरा गलत नहीं था। मैं समझ रही थी कि नज़ार के साथ कम अज़ कम उसका मुहाफ़िज़ दस्ता ज़रूर होगा जो बेहतरीन जंग आज़मा सिपाहियों पर मुश्तमिल था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं नसार के साथ तन्हा हवेली के अकबी दरवाजे से निकली। फिजार के वहाँ से
अपनी रवानगी को भी उसने राज में रखा और वह बड़ी सी एक चादर ओढ़े हुए था जिससे उसने अपने चेहरे का बड़ा हिस्सा छुपा लिया। जब तक हम दोनों बस्ती से निकल ना आए एक दूसरे को मुखातब नहीं किया और ना करीब आए। नसार अजनबियों की तरह मुझसे कुछ फासले पर आगे आगे जा रहा था और मैं उसके पीछे थी। बस्ती से काफी दूर निकल आने के बाद नसार ने अपने घोड़े की रफ्तार कम की और मैं अपना घोड़ा दौड़ाती हुई उसके करीब पहुंच गई। अब शायद वो मेरे साथ साथ चलना चाहता था। अब तक नज़ार से मैंने जो बात नहीं पूछी थी वो जुबान पर आ ही गई। ऐ माबला, तू जो कह रही है वो भी ठीक है, मगर मैंने जो किया है वो भी गलत नहीं। नसार ने कहा, मैं तेरी बात नहीं समझ सकी। ऐ नसार, वजाहत कर। अपने साथ भीड़ भाड़ से हम दुश्मनों की नजर में आ सकते हैं, नज़ार बताने लगा, और मैंने इसीलिए अपने मुहाफिज दस्ते को भी साथ नहीं रखा। रहा ए मामला तेरा ये कहना कि हिफाजत की खातर ये जरूरी था, तो मैं इससे गाफिल नहीं रहा। क्या मतलब ए नसार? मैं चौंक कर बोली। हिफाजती दस्ता हम दोनों पर नजर रखे हुए है। अगर दुश्मन से हमारा आमना सामना हो गया या हम किसी और मुश्किल में गिरफ्तार हुए तो हिफाजती दस्ते को हम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब तो तुझे इत्मीनान हो गया? नज़ार ने मुझे सूरत हाल से आगाह करते हुए सवाल किया और मैंने तवील सांस लेकर कहा, हाँ ए नज़ार, मैं अब मुतमिन हूँ। उसके बाद तेज रफ्तारी से सफर जारी रहा और रास्ते में हमने सिर्फ एक जगह कुछ देर को कयाम किया और खाना खा के चल दिए। अब मैंने भी कुछ फासले पर लोगों की नकलो हरकत को महसूस कर लिया। ये नसार ही के मुहाफिज दस्ते के सिपाही हो सकते थे, मगर मैंने नसार से अपने क्यास की तस्दीक नहीं चाही। हम अभी आशिर की बस्ती से खासी दूर थे कि सूरज गुरूब होने लगा और हमने अपने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी ताकि मुकम्मल तौर पर अंधेरा फैलने से पहले बस्ती के इर्द गिर्द मौजूदा पहाड़ी इलाके में पहुंच जाएं। वो पहाड़ी इलाका भूल भलियों की तरह था और उसमें दूर तक पहाड़ी सिलसिले फैले हुए थे। उस इलाके में बाआसानी सिपाहियों की खासी बड़ी तादाद छुप सकती थी और कियास गालबी यही था कि मेरे लश्कर के जिंदा रहने जाने वाले सिपाहियों ने वहीं पनाह ली होगी और वहां उन्हें तलाश कर लेना दुश्मन के लिए बहुत दुश्वार था। सारी बत्ती मुझे नज़ार ही ने बताई। वादी सबद से फरार होकर जब मैं महापुजारी के साथ उस बस्ती तक पहुंची थी तो ये इलाका रास्ते में नहीं पड़ा था। इसी सबब ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। ऊपर मैं अकेली होती तो शायद रास्ता भटक जाती। वो ऊंचे नीचे और गैर हमवार रास्ते इतने ही पुरपीच थे कि तेज रफ्तारी होने के बावजूद इस इलाके में दाखिल होने से पहले ही सूरज गुरूब हो गया और फिर जल्द ही तारीकी फैलने लगी। मशाल रोशन किए बगैर पहाड़ी रास्तों पर सफर करना खतरनाक था और सफर करने वाला अचानक रास्ते में आ जाने वाले किसी गहरी खड्ड में भी गिर सकता है और किसी चट्टान से टकराकर जख्मी भी हो सकता है। इस खतरे के बावजूद नसार ने मशाल रोशन नहीं की। वैसे भी अभी इतनी तारीकी नहीं फैली थी कि रास्ता बिल्कुल ही नजर ना आता। हाँ, उसने अपने घोड़े की रफ्तार जरूर कम कर दी और मैंने भी उसकी तकलीद में ऐसा ही किया। सामने के रुख पर नीम तारीकी में वो बज़ाहिर पहाड़ी सिलसिले में अब हमें नजर आने लगे। वो बड़ी पुरहैबत नजर आ रहे थे और मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि बज़ाहिर वो पहाड़ी सिलसिले जितने करीब नजर आ रहे हैं दर हकीकत उतने नज़दीक हैं नहीं। और उन तक पहुंचते पहुंचते हर तरफ अंधेरा फैल गया। वहां हर तरफ सन्नाटे का रार था। हमें सिर्फ अपने ही घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमारे घोड़ों की रफ्तार अब बहुत कम हो गई और हमने उस इलाके में दाखिल होने के बाद दानिस्ता ऐसा किया था ताकि इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए आगे बढ़े और कहीं किसी भी तरफ रोशनी की हल्की सी बेलकीर नजर आए या खफीफ सी आहट सुनाई दी तो उस तरफ चल दें। खासी देर हम इस इलाके में चलते रहे मगर हमें रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दी और ना ही कहीं कोई आहट सुनाई दी। यूं लगता था जैसे हमारे सिवा वहां कोई ना हो। अब हम घोड़ों से उतरकर उनकी लगामें थामे हुए ना हमवार रास्तों पर पैदल चल रहे थे। ऐ मामला, अचानक नज़ार ने मुझे धीमी आवाज में मुखातब किया। ये पहाड़ी सिलसिला वसीअ अरीद इलाके में फैले हुए हैं। रात के अंधेरे में शायद हम अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सकें। फिर ऐ नसार, हमें क्या करना चाहिए? मैं मुस्तरब होकर बोल उठी। अब तो सिर्फ यही एक सूरत मुमकिन है कि हम रात गुजारने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करें और जब रात गुजर जाए तो दिन के उजाले में तेरे लश्करियों की तलाश शुरू करें। नसार ने जवाब दिया, ऐ नसार, कि तुझे अपनी बस्ती से रवाना होते वक्त ये अंदाजा नहीं था
कि हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और अंधेरा फैलने के बाद लश्कर वालों की तलाश मुमकिन नहीं होगी। मैंने उससे सवाल किया। मुझे बिल्कुल इसका अंदाजा था, मगर इस वक्त तू कुछ भी सुनने की रूदाद नहीं थी। अगर मैं तुझसे ये कहता कि दिन भर वहीं आराम से गुजार ले और ये कि हम रात को चलेंगे, तो क्या तू इस पर आमादा हो जाती? नसार ने पूछा। और नसार ने ठीक ही कहा था कि मैं वाकई इस बार तैयार ना होती, और जवाब में यही मैंने नसार से कह दिया। और फिर हमने एक पहाड़ी के दामन में निस्बतन हमवार जगह देखकर अपने घोड़े एक बड़े पत्थर से बांध दिए। उसके बाद नसार घोड़ों की पुश से बंधा हुआ सामान उतारने लगा। सामान में खाना भी था, चंद बर्तन भी और पानी से भरा मशकीदा भी। नसार ने उस जगह एक मोटी सी चादर बिछा दी और हमने खाना खाया और पानी पीकर लेट गए। और मैंने आसपास नजर दौड़ाई, दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आया। तेरा हिफाजती दस्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा ए नज़ार। उसे मैंने यही हदायत दी है कि हमारे करीब ना रहे, और मैं मुतमिन हो गई। दिन भर घोड़े की पुश्त पर सफर करने के बाद खासी थकन हो गई थी, इसलिए जल्द ही नींद ने मेरी आंखों में जाल बुनने शुरू कर दिए। अभी गनूदगी पूरी तरह मेरे जहन पर तारी नहीं हुई कि एक तेज नस्वानी चीख ने मेरे असाब को झंझोड़ दिया और मैं उछल कर बैठ गई। नसार को भी मैंने उसी तरह उछल कर बैठते हुए देखा, और चंद ही लम्हों के बाद उसी तरह फिर एक घुटी घुटी सी नस्वानी चीख उभरी और यूं लगा जैसे किसी ने उस चीखने वाली का मुंह बंद कर दिया, और दोनों चीखें अकब से और कदरे बुलंदी से सुनाई दी थीं, और फिर एकदम गैर फितरी सन्नाटा छा गया जैसे कुछ ना हुआ हो। तूने सुनी चीखें ए नसार? ये बिल्कुल बेमकसद सवाल था। अगर उसने चीखें ना सुनी होती तो उठकर क्यों बैठता? शायद उससे ये सवाल करके मैं उसे अपनी जानब मुतवज्जा करना चाहती थी, या मेरा मकसद कुछ ना कुछ बोलना था। हाँ ए माबला, नसार ने जवाब दिया। लगता है यहाँ वहशत और जिंदगी का कोई खेल खेला जा रहा है। फिर नसार की आवाज में सख्ती थी। तो ए माबला यही रह, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, शायद यहाँ करीब ही कोई मौजूद है। यह कहते हुए उसने करीब ही रखी हुई राइफल उठा ली। नहीं, मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी ए नसार, मैंने कहा, और अपनी राइफल के साथ तरफ हाथ बढ़ा दिया। निसार ने मुझे अपने साथ चलने से मना किया, मगर मैं नहीं मानी। मजबूरन वो भी मुझे अपने साथ ले चलने पर राजी हो गया। कुछ दूर चलकर हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहां से उस पहाड़ी पर चढ़ना मुमकिन था। हम दोनों बहुत संभल कर ऊपर चढ़ रहे थे, और इसके बावजूद एक जगह मेरा पैर फिसल गया और मैंने खुद को फौरन संभाल लिया, लेकिन उससे कई छोटे बड़े पत्थर नीचे लड़कते चले गए। उन पत्थरों के लड़कने की आवाज ने सन्नाटे को मजरूह कर दिया, और उसी वक्त जरा बुलंदी से फिजा के दोष पर तैरती हुई एक मदम सी आवाज उभरी, और किसी ने किसी को मुखातब किया हो, कुछ कहा हो, मगर क्या, ये मुझे सुनाई नहीं दिया। यकीनन ऊपर कुछ लोग मौजूद थे। मैं अब मजीद एहतियात से ऊपर चढ़ रही थी। नज़ार ने मुझसे आगे था। तेरा वहम होगा, इस मर्तबा वाज़ेह तौर पर एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। पत्थर तो हवा की रगड़ से भी, मगर मुझे उसी सिमत दो हेले भी हरकत करते नजर आए थे। दूसरी आवाज उभरी। अच्छा, तो फिर चल देख लेते हैं, भला इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? पहली आवाज वाला बोला, और मैंने देखा कि नसार ऊपर चढ़ते चढ़ते एकदम ऊंधा लेट गया है, और मैंने भी उसकी तकलीद में ऐसा ही किया। हम दोनों बेहिस्सो हरकत हो गए। खतरा हमसे ज्यादा दूर मालूम नहीं होता था। लेटने के बावजूद मेरी नजरें ऊपर ही उठी हुई थीं, और मेरी दाएं हाथ में मौजूद राइफल की नाल भी ऊपर की तरफ ही थी, और किसी भी लम्हे मैं खतरा सामने आने की सूरत में गोली चला सकती थी। हमें इसी हालत में ऊंधे लेटे हुए जरा ही देर गुजरी कि ऊपर कुछ बुलंदी पर मुझे दो हीले नजर आए। वो यकीनन दो अफराद थे जो किसी कदर नीचे उतर कर रुक गए थे, और उनके और हमारे दरमियान सिर्फ 15-20 नेदों का फासला होगा। देख ले, यहाँ दूर तक कोई नहीं। तुझ पर तो बस मफरूर दुश्मन सिपाहियों का खौफ गालब आ गया है। अरे नहीं, तू खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। वो तो इस पहाड़ी सिलसिले में कहीं बहुत दूर अंदर छुपे होंगे। यहाँ वो कहाँ से आ जाएंगे? चल आ वापस चलें, हमारी बारी आने ही वाली है। ये आवाज वही थी जो मैंने पहले सुनी थी, और मैं खामोशी से अपनी जगह पड़ी रही। मगर जब मालूम था कि दुश्मन सिपाही यहाँ छुपे हुए हैं, तो लड़की ने इधर आने की जरूरत ही क्या थी? दूसरा शख्स बोला, लड़की को भी तो ठिकाने लगाना था ना। अगर उसे ठिकाने ना लगाया गया तो वह हमारी निशानदही कर देगी, और तेरा तो वो नाम भी जानती है। लेकिन पहले तो मुझे तुम लोगों ने ये बात नहीं बताई थी, वरना मैं
मैं इस लड़की को धोखा देकर बस्ती के बाहर ना लाता। हमें मालूम था कि तू बुज़दिल है। पहला शख्स आहिस्ता से हंस दिया। अगर तुझे हम पहले से ही बता देते कि बाद में लड़की को मार डालना है तो कभी तू हमारे साथ ना मिलता और ना लड़की को बहका कर लाने पर आमादा होता। उन दोनों की बातों से बहुत कुछ वाज़ेह हो गया था। वो आशर की बस्ती के बाशिंदे थे और किसी लड़की को अपनी नापाक ख्वाहिशात की बीन चढ़ाने के लिए अगवा करके यहाँ ले आए थे। उसके बाद उनका इरादा लड़की को कत्ल कर देने का था और उनकी तादाद 2 अफराद से यकीनन ज़्यादा थी और वो दोनों पहरा दे रहे थे। उन दोनों के साथी इस वक्त अपनी नाअसूदा ख्वाहिशों की तकमील कर रहे थे और मैंने बमुश्किल अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पाया और उन पर गोली नहीं चलाई, वरना तो मेरा दिल यही चाह रहा था कि उन दोनों को फूंक दूं। वो अब पलट कर वापस जा रहे थे और उसी वक्त नसार ने पलट कर हाथ में मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया और सीने के बल ऊपर रेंगना शुरू कर दिया। वो गालबन इन दोनों के ताक़ुब में जाना चाहता था और मैंने भी सीने के बल रेंगते हुए ऊपर निगाह उठाई। दोनों अफराद के हयूले कुछ ऊपर जाकर गायब हो गए थे। किधर, ये मैं नहीं देख सकी। ऊपर गालबन दाएं या बाएं जानब कोई कटाव था। वो हयूले उसी कटाव की आड़ में चले गए, वरना इस तरह अचानक गायब ना हो जाते। और कुछ ही देर के बाद मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। दाएं जानब जरा सी बुलंदी पर पहाड़ी कटाव मौजूद था। अभी तक हम सीने के बल रेंगते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। कटाव तक पहुंचकर हम जैसे ही दाएं जानब मुड़े, हमें कुछ फासले पर रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी एक गार के दहाने से बाहर आ रही थी जो बाएं जानब था। 2 अफराद दहाने के करीब ही खड़े थे और दोनों ही मसला थे। उनके जिस्मों पर मौजूद मखसूस लिबास से साफ ज़ाहिर था कि वह दोनों सिपाही हैं और ये तो हमें पहले ही मालूम हो चुका था कि उनका तल्लुक दुश्मन से है। अब ये नई बात पता चली कि वह सिपाही भी हैं। मेरा ख्याल में यही वही थे जिनके हयोले ज़रा देर पहले हमने देखे और इन्हीं का ताक़ुब करते हुए हम यहाँ पहुँचे। इनके साथियों का ताल्लुक भी हमारे दुश्मन सिपाह से ही हो सकता था। हम ज़मीन पर रेंगते हुए मज़ीद आगे बढ़ रहे थे और ये बात हमारे हक़ में थी कि उन दोनों के चेहरे हमारी तरफ नहीं थे। अंदाज़े के मुताबिक उन दोनों के साथी इसी गार में हो सकते थे जिससे कुछ रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने नसार को रुककर राइफल ऊपर उठाते देखा और अब यकीनन उन दोनों का किस्सा पाक करके उनके साथियों के चुंगल से लड़की को आज़ाद कराना चाहता था। ये देखते ही उनमें से एक का निशाना मैंने ले लिया और ऐसा करते हुए मैं ये सोच रही थी कि नसार ने दूसरे शख्स का निशाना लिया हो तो अच्छा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जो सोचता है पूरा हो जाता है। तकरीबन एक साथ नसार की और मेरी राइफल ने शोले उगरे और वो दोनों ढेर हो गए। एक शख्स को मेरी गोली का निशाना बना और दूसरे को नसार की गोली ने ठिकाने लगा दिया। उन दोनों के गिरते ही नसार उठकर गार के दहाने की तरफ भागा और मैंने भी उठकर नसार के पीछे भागने में देर नहीं की। अभी हम गार के दहाने से दूर ही थे कि एक सिपाही अंदर से भागता हुआ बाहर आया और नसार की गोली का निशाना बन गया। मालूम नहीं इस गार में अभी और कितने सिपाही मौजूद थे। मैं आगे बढ़ी तो नसार ने हाथ उठाकर मजीद आगे जाने से रोक दिया। अब हम गार के दहाने तक पहुंच चुके थे, लेकिन दहाने के बिल्कुल सामने नहीं गए जहां से रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता था। हमें गार के अंदर से निशाना बनाया जा सकता। नसार ने मुझे आगे बढ़ने से रोककर उसी मुमकिन खतरे से बचाया। खिलाफे तवक्का गार के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और वहाँ कोई मौजूद ना हो। मेरे नज़दीक ऐसा मुमकिन नहीं था कि अगर वो सिर्फ 3 अफराद ही थे तो कम अज़ कम उस लड़की को वहाँ ज़रूर मौजूद होना चाहिए था जिसकी मैंने चीखें सुनी थी। और फिर मुझे यह ख्याल आया मुमकिन है उन्होंने लड़की का मुंह बांध दिया हो ताकि वो मज़ीद ना चीख सके। उस गार के दहाने से हम अचानक फायर करते हुए भी अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। इस तरह लड़की की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी, जिसे बचाने के लिए हमारे हाथों 3 अफराद कत्ल हो चुके थे। मैं नसार के बिल्कुल करीब ही चौकन्ना खड़ी थी। उसकी तरफ झुकते हुए मैंने सरगोशी की, गार के अंदर तो मौत की ऐसी खामोशी तारी है। अब तेरा क्या इरादा है ऐ नसार? हम यहाँ इस तरह कब तक खड़े रहेंगे? मैं आगे सीने के बल रेंग कर जाता हूँ, तू यहीं ठहर। नसार ने मेरी तरफ मुंह करके जवाब में सरगोशी की। तू ठहर, मैं देखती हूँ आगे जाकर। नहीं, उसने मुझे रोक दिया और फिर तेजी के साथ ऊंधा लेटकर आगे रेंग गया और मैंने भी वहाँ रुके रहने की बजाय उसके पीछे जाना मुनासिब समझा।
और उसी की तरह सीने के बल रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। नसार अब गार के दहाने से रेंगता हुआ अंदर जा रहा था और चंद ही लम्हे बाद मुझे भी गार का अंदरूनी हिस्सा वादे तौर पर नजर आने लगा और मैं चौंक उठी। गार खाली था, वहां कोई भी नहीं था। गार की दाएं जानब एक दरार में रोशन मशल का दस्ता प्यूसत था और गार ना ज्यादा बड़ा था और ना बहुत छोटा। सामने के रुख पर कदरे बाएं जानब दरार नजर आ रही थी जो खासी चौड़ी थी। उसका कुछ हिस्सा ही रोशन था। जहां तक मशल की रोशनी पहुंच रही थी दरार अंदर से तारीक थी। उसके बावजूद गार में कोई नहीं था। नसार फौरन उठकर खड़ा नहीं हुआ। चंद लम्हे हम दोनों इसी तरह साकत पड़े रहे और फिर नसार आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। उसने दाएं जानब बढ़कर गार की दरार में प्यूसत मशल निकाल ली और मैं जैसे ही उठकर खड़ी हुई मेरी नजर गार के फर्श पर उस जगह पड़ी जहां बड़े बड़े बालों का एक गुच्छा पड़ा हुआ था और मैंने झुककर बाल उठा लिए और नज़ार से बोली, ये बाल उसी मजलूम लड़की के मालूम होते हैं, उस पर यकीनन तशद्दुद किया गया होगा। मगर वो लड़की कहाँ गई ए मामला? ये कहता हुआ नसार उस चौड़ी दरार की तरफ बढ़ा जो अंदर से तारीक थी और मैं भी उधर लपकी। दरार इतनी चौड़ी थी कि नसार उसमें बाआसानी दाखिल हो गया। अब मशल की रोशनी दूर तक दरार को रोशन कर रही थी और मैंने दरार के सिरे पर पहुंचकर देखा कि वहां भी कोई नहीं था। ए मामला, यकीनन कोई यहाँ था और लड़की को लेकर इसी रास्ते से फरार हुआ है। ये दरार इसी पहाड़ी के दूसरे रुख तक गई होगी। नसार ने क्यास आराई की। आगे जाकर ये कुछ और चौड़ी हो गई और आगे चलकर देखते हैं। मैंने नसार की तजवीज़ से इत्तफाक किया और दरार में दाखिल हो गई। हम दोनों आगे पीछे बढ़ते चले गए। वो दरार एक और गार के अंदर जाकर ख़त्म हुई जिसका दहाना दूसरी तरफ था और फिर जब हम उस गार से बाहर निकले तो दाएं जानब खासे फासले पर नशीब में दो हयोले हरकत करते दिखाई दिए। वो रहे। नसार ने तेज सरगोशी की। उसी के साथ उसने उधर इशारा किया। हाँ, मैं भी देख चुकी हूँ, मैं बोली। एक हयोला सीधा आगे बढ़ रहा था और दूसरा जैसे घुसरता हुआ चल रहा था। वो जो कोई भी थे हमसे इतने फासले पर थे कि मशल की रोशनी उन तक नहीं पहुँच रही थी। और फिर नसार ने जलती हुई मशल पलट कर गार के दहाने में फेंक दी और मेरा हाथ थाम कर तेजी से आगे बढ़ा और मेरे कुछ पूछने से पहले उसने खुद ही बता दिया कि मशल हाथ में लेकर उनका ताक़ब करना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है और वो भी अपने साथियों की तरह मसला होगा। ऐसी सूरत में अगर वो मुड़कर देख लेता या खुद किसी तरह मुड़ते हुए उसकी नज़र हमारी जानब उठ जाती तो आसानी से हमें निशाना बना सकता था। तेजी से हमारे नशीब में उतरने की वजह यह थी कि कहीं वो हयोले हमारी नज़रों से उजल ना हो जाएं और ज़रा ही देर में हम उनके खासे करीब पहुंच गए। अब ये भी वाज़ेह हो गया कि उनमें से एक हयोला मर्द का था और दूसरा लड़की का। मर्द उस लड़की का हाथ थामे आगे की तरफ तकरीबन घसीट रहा था या फिर लड़की लादानिस्ता गुजरती हुई चल रही थी। उसके पैरों में तकलीफ थी। हम अब इंतहाई एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे थे और हमारी राइफलों का रुख मर्द की तरफ था कि जैसे ही उसे अपनी ताकत का शुबा हो वो मुड़कर देखे, यहाँ पर गोली चलाने की कोशिश करे, हम उसे भून दें। मगर उसके बाद फिर राइफल नज़र आ रही थी। शायद कोई पत्थर नसार के पैर की ठोकर से लड़का था कि चंद नेज़ों के फासले पर आगे जाता हुआ शख्स तेजी से मुड़ा और ऐन उसी वक्त मैंने उसकी खोपड़ी में सुराख कर दिया। गोली उसने भी चलाई थी मगर मेरे और उसके गोली चलाने में शायद एक लम्हे के 10वें हिस्से का फ़र्क था। उसकी चलाई हुई गोली मेरे करीब से सनसनाती हुए गुजर गई। गनीमत यह हुआ कि इस तरफ नसार नहीं था वरना गोली उसे लगती। गोली खाकर वो शख्स नशीब में लड़कता चला गया और लड़की ठटक कर अपनी जगह रुक गई। नसार और मैं लपक कर उसके करीब पहुंचे तो वो खौफ से कांप रही थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और जिस्म पर लिबास की जगह चीतरे झूल रहे थे। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपने मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोल कर मैंने सख्ती से बंधा हुआ वो कपड़ा खोला तो लड़की ने गहरी गहरी सांस लिए। उसी वक्त नशीब में दाएं जनब रोशनियों की कतार से मुतहरक नजर आई। वो रोशनी एक बड़ी सी चट्टान के पीछे हरकत कर रही थी। लड़की के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोलने के लिए मैंने अपनी राइफल शाने पर लटका ली। अलबत्ता नसार की राइफल उसके हाथ में थी। नसार ने उस तरफ अपनी राइफल सीधी ही की थी कि एक तेज सरसराती हुई आवाज़ गूंजी, तुम लोग देख लिए गए हो और हमारे निशाने पर हो। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो अपने हथियार फेंक दो। मैं और नसार खुले में थे। आसपास कोई जगह ऐसी नहीं थी कि हम उसकी आड़ ले सकते और वह जो कोई हमसे हथियार फेंक देने को कह रहा था
खुद चट्टान की आड़ में था। हरकत करती रोशनियों से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में भी वक़्त पेश नहीं आई कि वह शख्स अकेला नहीं था, उसके साथी भी चट्टान के पीछे मौजूद थे। अचानक नसार मेरे हाथों को झटका देकर तेजी से सीने की बल लेट गया और मैं भी उसका इशारा समझते ही लेट गई। ऐन उसी लम्हा फिजा धमाकों से गूंज उठी और मैंने चट्टान की तरफ शोले लपकते देखे। जवाब में चट्टान की जानिब से भी फायरिंग शुरू हो गई, मगर फायरिंग करो हमसे कदरे हटकर बाएं सिमत था। उधर ही से चट्टान की तरफ गोलियां चलाई गई थीं। चट्टान की जानिब फायरिंग करने वाले नसार के मुहाफ़त दस्ते के सिवा और कौन हो सकता था। ऐ मामला, इस मौका से फ़ायदा उठाकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। नसार ने मुझे मुखातब किया, और हमें इसी रास्ते से वापस चलना है जिस तक यहाँ पहुँचे हैं। इसी गार की तरफ से सीने के बल रेंगती हुई चल, जिसके अंदर मैंने जलती मशल फेंकी थी। इस दौरान मेरा मुहाफ़त दस्ता उन लोगों को उलझाए रखेगा जो चट्टान की आड़ लिए गोलियां चला रहे हैं। मगर ए नसार, वो लोग कौन हो सकते हैं? जो सवाल मेरे जहन को परेशान किए हुए था ज़ुबान पर आ गया। क्या खबर कौन लोग हैं? तू क्या सोच रही है? ये वक्त ज़्यादा सोचने का नहीं ए मामला, नसार बोला। ए नसार, मैं एक खतरा मोल लेना चाहती हूँ। अपने मुहाफ़त दस्ते के निगरान को फायरिंग बंद कर देने का हुक्म दे। कैसा खतरा? क्या चाहती है तू? ए मामला, कुछ तो बता। क्या तूने इस पर गौर नहीं किया ए नसार कि इन पहाड़ों में मेरे लोगों ने पनाह ली है, और भला यहाँ कौन इस वक्त आ सकता या हो सकता है? और मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वह मेरे ही लोग हैं, और मैं अपने इस क़यास की तस्दीक चाहती हूँ। मगर किस तरह ए मामला? ये कैसे मुमकिन है? नसार के लहजे से उलझन का इज़हार हो रहा था। तू ये मुझ पर छोड़ दे और अपने मुहाफ़त दस्ते से फायरिंग रुकवा दे। नसार को मजबूरन मेरी बात मानना पड़ी। उसके मुहाफ़त दस्ते की तरफ से गोलियां चलना बंद हो गईं, मगर कुछ देर चट्टान की तरफ से फायरिंग जारी रही। ऐ चट्टान की आड़ में छुपे हुए लोगों, मैं आतून देवी तुम्हें हुक्म देती हूँ कि आड़ से निकल कर सामने आ जाओ। फायरिंग रुकते ही मेरी आवाज़ गूंजी, और मुझे मालूम है कि तुम अपनी आतून देवी की आवाज़ अच्छी तरह पहचानते हो। फिर उसी लम्हे मेरे दिल खुशियों से बिलियों उछलने लगा जब चट्टान के पीछे से मेरे हक में नारे बुलंद हुए, और उसी के फौरन बाद मशले बदस्त सिपाही चट्टान की आड़ से निकल कर तेजी के साथ उस तरफ आने लगे जिधर मैं थी। वो लड़की हमसे कुछ फासले पर खौफजदा सी बैठी थी, जिसकी हमने जान बचा ली, मगर शायद आबरू नहीं बचा सके थे। गालबन उसके अंदर मजीद खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। मैं अब उठकर खड़ी हो गई थी, और नसार ने भी मेरे करीब ही खड़ा था, और मुझे खुशी थी कि मैं आखिरकार अपने लोगों को तलाश करने में कामयाब हो गई। चट्टान की आड़ से निकल कर आने वालों की गिनती 100 के करीब थी। उनके हाथों में मौजूद मशलों की वजह से हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। उस वक़्त बाहर भी रोशनी थी और मेरे अंदर भी। मेरे करीब पहुंचकर उन्होंने मुझे ताज़ीम दी, और फिर मेरे किसी हुक्म के इंतज़ार में 2 रवैया गर्दनें झुकाकर खड़े हो गए। नसार ने यकीनन ऐसा एहतराम और अज़हार अक़ीदत किसी सरदार के लिए नहीं देखा होगा। उनमें से किसी की भी ये जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे पूछ सकता कि मैं कहाँ चली गई थी, या वहाँ अचानक कैसे नमूदार हो गई। देवी देवताओं से इस तरह के सवालात करना हद से तजावज़ ख्याल किया जाता था। ऐ लोगो, मैंने उन्हें मुखातब किया, तुम पर जो गुजरी तुम्हारी आतून देवी उससे पूरी तरह आगाह है। अब तुम मुझे अपने महापुजारी और अहरस के पास ले चलो। और फिर वो लोग मुझे और नसार को उस पहाड़ी सिलसिले की अंदरूनी सिमत ले चले, और मैंने रास्ते में उनके सालार से दरियाफ्त किया कि वो लोग इस तरफ किस तरह आ निकले थे जहाँ मैं और नसार थे। सालार ने जवाब दिया कि आतून देवी, हमें महापुजारी ने इन अतराफ में पहरे पर मुकर्रर किया था, और हमने गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी तो इधर मतवज्जा हो गए। और यही मेरा भी ख्याल था कि मेरे कहने पर इस मसलूम लड़की को भी साथ ले लिया गया, जिसकी वजह से ये सारा हंगामा हुआ। वो लड़की मेरे लिए नेक फार साबित हुई। चंद सिपाहियों के मैंने अपने और नसार के घोड़े ने सामान उठा कर लाने के लिए भी भेज दिया। अंदरूनी सिमत एक पहाड़ी दर्रे के अंदर जो खासा चौड़ा और लंबा था, मेरा लश्कर पड़ाव डाले हुए था। उसी दर्रे के करीब एक बड़े से गार में महापुजारी और अहरस के क़याम का बंदोबस्त किया गया था। गार के दहाने पर मसला मुहाफ़िज़ पहरा दे रहे थे। उन्होंने मुझे अंदर आते देखकर ताज़ीम दी और अंदर जाने का रास्ता दे दिया। नसार और पहरेदार दस्ते के सलार को साथ लिए मैं गार में दाखिल हो गए। गार में 2 मशलें रोशन थी। महापुजारी और अहरस दोनों ही इस वक्त तक सोए नहीं थे, और मुझ पर नज़र पड़ते ही खिल उठे। अहरस के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, और वह दोनों एकदम अपने बिस्तरों से उठकर बैठ गए। ए आतून, मेरी बच्ची,
महापुजारी उठकर मेरी तरफ बढ़ा और फिर उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसके एक हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी और जरा ही देर में नजाद, महापुजारी और आहरत एक बिस्तर पर बैठे हुए एक दूसरे से महू गुफ्तगू थे। पहरेदार दस्ते के सालार को मैंने लड़की की मुनासिब देखभाल की ताकीद करके वहां से भेज दिया था ताकि वो अपने फराइज अंजाम दे सके, और मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि आहरत शदीद जख्मी नहीं था जैसी कि मुझे खबर मिली थी। ए आतुन, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं कोई हसीन ख्वाब नहीं देख रहा। आहरत ने अपने जज्बात का इजहार किया। क्या तू वाकई आ चुकी है? हाँ, मैं मुस्कुराकर बोली, और अपने साथ मैं सरदार आशिर के अजीम बेटे नसार को भी लाई हूँ। मैंने नसार की तरफ इशारा किया। सरदार आशिर का बेटा महापुजारी ने चौंक कर कहा, ए महापुजारी, मैंने तुझे पहचान लिया, मगर शायद तू मेरी सूरत भूल गया, सिवाय इसके कि तू दुबला पुतला हो गया है और किसी कदर बूढ़ा भी। तुझे मैं और कोई तब्दीली नहीं हुई। नसार बोल उठा और फिर बड़ी गर्मजोशी के साथ उठकर महापुजारी से गले मिला। आहरस भी मैंने नजार का तारफ कराया और वह दोनों भी गले मिले। उसके बाद मुझे उस पर इस दौरान जो कुछ बीती थी उससे मैंने आहरस और महापुजारी को आगाह कर दिया, और मेरे इसी बयान में नसार और उसकी दोनों बस्तियों का जिक्र भी आ गया, और मैंने उसी के साथ पहाड़ी बस्तियों के सियासी हालात से भी महापुजारी को आगाह कर दिया, जिनका इल्म मुझे नसार से हुआ था। इन हालात की रोशनी में महापुजारी के लिए ये समझना मुश्किल नहीं रहा होगा कि उसकी शिकस्त का सबब क्या था। तूने जो हालात बयान किए हैं ए आतून, उनसे तो ये अंदाजा होता है कि सयान अब इस पूरे इलाके में एक नाकाबिल शिकस्त ताकत बन चुका है। अब उस पर हाथ डालना आसान नहीं रहा। मुझे पहले ही इसका अंदाजा नहीं था। महापुजारी ने मेरी पूरी रुदात सुनकर इज़हार तशवीश किया। इस मौके पर नसार ने फिर अपनी वही बात दोहराई जिसका इज़हार वो मुझसे 2 मरतबा कर चुका था, यानी अगर हम उसकी मुलाकात हमसे पहले हो जाती तो शायद ये सूरत हाल ना होती। मगर सोचना ये है ए नसार कि अब क्या हो। हाँ, अब क्या हो? महापुजारी भी बेख्तियार गैर इरादी तौर पर बड़बड़ाने लगा। उसके चेहरे से फिक्रमंदी का इज़हार हो रहा था, और फिर महापुजारी से मालूम हुआ कि हमारे लश्कर का ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। नसार के भेजे हुए मुखबरों की मालूमात का दरिया वहाब के सिपाही थे, जिन्होंने वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया था, और लश्कर का सिर्फ 1/4 से भी कम हिस्सा पामाल हुआ। और मुखबरों की फराहम करदा इतला से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि निसफ से ज़्यादा लश्कर ख़त्म हो गया, और उससे मुझे बड़ी तकवीत मिली। ए माबला और ए महापुजारी, सियान से टक्कर लेने की सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत है। नसार ने आखिरकार एक तजवीज़ पेश की। वो ये है कि हम इसकी कुव्वत को रफ्ता रफ्ता ख़त्म करें और उसके मुकाबले में बेसब्री ना दिखाएं। तेरे नज़दीक ए नसार इसकी हिकमत अमली क्या है? मैंने पूछा। वादी सबत के बाद सयान के ज़रनगी इलाके में दूसरी बड़ी कुव्वत मेरी ही आबाई बस्ती है। उस बस्ती पर फतेह हासिल करने का मतलब ही होगा ए माबला कि हमने अपने दुश्मन की आधी ताकत तोड़ दी। मगर जैसा कि तू भी जानती है कि महापुजारी को भी इसका तजर्बा हो चुका है, ये आसान बात नहीं। नसार तफसीर के साथ जंगी हिकमत अमली बयान करने लगा। उस बस्ती पर फतह एक बस्ती पर नहीं बल्कि 3 बस्तियों पर फतेह होगी। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अगर वहाब को 2 कबीलों के फौजियों की तरफ से कमक ना मिल जाती तो महापुजारी उसे शिकस्त फाश देने में कामयाब हो जाता। नसार ने तस्दीक की तलब नजरों से महापुजारी को देखा।